বোন জোজো ম্যামের সামনে পারফর্ম করছে। सभी मेरे से पूछते हैं ये बात और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आप गलत इस फील्ड को समझते हो, मैं बताऊं कि फील्ड गलत सही आप पे डिपेंड करता, हम पे डिपेंड करता है। कोई अगर गलत नज़रिए से देखेंगे तो कौन सा फील्ड आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोग जो होते हैं हर फील्ड को अच्छा बनाते हैं, बुरे लोग होते हैं कोई भी फील्ड को बुरा कर सकते हैं। হ্যালো গাইস, আমি রোশনারা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এখন বাজে সকাল 8টা আর উঠে পড়েছি সকাল সকাল, কারণ আজকে আমাকে রেডি হয়ে বেরোতে হবে বোনকে নিয়ে। মা, আমি আর বোন যাবো বোনকে নিয়ে। কোথায় যাবো? অনেক ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায় যাবো। আজকে বোন জোজো ম্যামের সামনে র্যাম্প ওয়াক করবে, এছাড়াও ডান্স পারফর্ম করবে। তো সেখানে যাবো। বুঝতেই পারছো আমার হাসি দেখে কতটা এক্সাইটেড। তার আগে দেখো একটা পিম্পল হয়েছে যেটা আমাকে প্রচণ্ড ডিস্টার্ব করছে। তো আমার ভালো লাগছে না, তো কী করা যাবে। যাই হোক, তো এখন তাড়াতাড়ি করে রেডি হবো, হয়ে যাবো। আজকে একটা ক্যালেন্ডার লঞ্চিংয়ের শ্যুট আছে, তো সেখানে নিয়ে যাবো বোনকে। বোনের সেখানে কয়েকটা পারফর্ম আছে। বোন ছাড়াও আরও বোনের মতো বোনের এজের ছেলে মেয়ে আছে যারা পারফর্ম করবে। সো আমি বাড়িতে বসে বক বক করে ভিডিওটা বড় করতে চাই না, কারণ ভিডিওটা এমনি অনেক বড় হবে আর ইন্টারেস্টিং হবে। তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড বিউটির ব্যাপারে, তারপরে মডেলিংয়ের ব্যাপারে, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা কিন্তু অনেক স্পেশাল। তো স্কিপ না করে দেখতে থাকা, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আজকের ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবে হোয়াট ইজ মডেলিং আর হোয়াট ইজ বিউটি। সো চলো দেরি না করে বেরিয়ে যাওয়া যাক। আমি রেডি হয়ে তারপরে বেরিয়ে দেখা হচ্ছে। সো গাইস, বেরিয়েই একটা ওলা বুক করে নিলাম। চলো ওখানে গিয়ে পৌঁছে দেখা হচ্ছে। দেখতে দেখতে নেমে গেলাম ক্লক টাওয়ারের সামনে আর এসে গেলাম আমরা আমাদের মেন ডেস্টিনেশানে। চলো ভিতরে যাওয়া যাক। এইটা হচ্ছে মেকআপ রুম। এসেই আমরা মেকআপ রুমে চলে এলাম। যে যে মেকআপ করেনি তাদের জন্য মেকআপ করিয়ে দেবে। তো বোন মেকআপ করেই এসছে আর শুরু হয়ে গেল ওয়েলকামিং অনুষ্ঠান। দেখো জোজো ম্যাম কি সুন্দর বাতি দিয়ে প্রদীপ জ্বালছেন। ভীষণ মিষ্টি দেখতে, একেবারে ডলের মতো। দেখো, আর এইবারে শুরু হয়ে গেল ওয়েলকামিং ডান্স, কিন্তু আমি মিউজিকটা দিতে পারবো না, কপিরাইট পড়ে যাবে। So happy कि आपको देखने का, आपसे मिलने का लोगों को मौका मिला। तो मैम आई वुड लाइक दो वर्ड आप लोगों के लिए बोल दीजिए, दे विल बी फील ब्लेस्ड। Hi, good morning. First of all, I would like to thank Hina for making me a part of this wonderful launch and this entire show today. और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसा कुछ है जिसमें हर एज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So this is really nice and it's another encouragement for people of every age, like from a kid to a woman and a male. So I wish you all the luck for your future and बहुत अच्छा लग रहा है. सुबह सुबह उठ के इतना अच्छा ड्रेसेस एंड मेकओवर्स देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much, Hina, and I wish you all the luck for your future. Go ahead. Good luck. थैंक यू सो मच। हमारे कंटेस्टेंट बहुत ही खुश हो गए और स्पेशली आपकी आवाज़ और आपके गुड विशेस सुनकर। तो इसके साथ ही मैम चाहेंगे अपने आप शुभ हाथों से हमारे मॉडल्स के जो कैलेंडर है उसको ओपन करके उसका लॉन्चिंग कीजिए और इन लोग का थोड़ा ब्लेसिंग्स दे दीजिए प्लीज मैम। फर्स्ट पिंक वाला मैम। বোন এখন পারফর্ম করছে জোজো ম্যামের সামনে। এরপর একে একে প্রচুর পারফরমেন্স রয়েছে। তো আমি যদি সবটাই তোমাদের দেখাতে যাই তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। সো এখন হচ্ছে নেক্সট জোজো ম্যাম আর মেইন যিনি ম্যাম আর তার মেয়ে, দেখো কি সুন্দর র্যাম্প ওয়াক করছে, ভীষণ কিউট।
এখন একে একে সবাই ডান্স পারফর্ম করবে, যদি মিউজিকটা অ্যাড করতে পারতাম খুব ভালো হতো। First, I would like to tell you that what's the beauty? Beauty doesn't mean external facial beauty. Beauty doesn't mean fair skin. Beauty doesn't mean tall, fair. It's not definition of beauty. All persons are born as a beautiful. Because I believe कि गॉड की क्रिएचर्स कोई भी बदसूरत या ख़राब नहीं होते, सभी ब्यूटीफुल होते हैं। बट हाउ यू कैन शो, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स अ ब्यूटी। इफ यू और सी एनी पर्सन हु इज क्रॉसिंग ऑन द रोड, ही माइट बी नॉट ब्यूटीफुल, आप बोलोगे वो अच्छा नहीं है, बट इफ यू स्टार्ट टू टॉक देन यू फील दैट हाउ ब्यूटीफुल ही और शी इज। तो इट्स मीन्स ऑल ओवर आप मिलाकर ही फील कर पाओगे कि इंसान कितना ब्यूटीफुल है। एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड, एक आप किसी से बात कर रहे हो, अगर के रूड होकर बात करते हो, फेयर स्किन है बट इट्स नॉट ब्यूटीफुल। आप अगर बात करते हो तो रिक्शा कूलर से भी प्यार से बात करें, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वो जो पैदा हुआ उसे भी भगवान ने पैदा किया, हमें भी भगवान ने पैदा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फेयर स्किन है तो हम उसको रूड होकर जवाब दें। इट्स नॉट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सॉफ्ट स्पोकन, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंस, व्हाट टैलेंट यू हैव। आपको जो भी टैलेंट आपके अंदर है, शायद आप बहुत अच्छा बोलना जानते होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, शायद मैं नहीं होंगी वो अच्छे स्पीकर। हर इंसान एक एक क्वालिटी होता है और वही होता है डेफिनेशन ब्यूटी का। बहुत अच्छा बोलना हो सकता है, बहुत अच्छा चलना होता है, बहुत अच्छा बिहेवियर हो सकता है, बहुत अच्छा टैलेंट आपका हो सकता है, बहुत अच्छा पेंटिंग करते होंगे, हो सकता है बहुत अच्छा राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन सबका मिलाकर ही ब्यूटीफुल इंसान होता है। एग्जैक्टली, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म क्या लोगों को ब्यूटीफुल बनाने का प्लेटफॉर्म है, तो ये प्रोसेस क्या है? यू कांट से दैट हम किसी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, कि जो भी हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बट हम उसके अंदर वो चीज़ एहसास दिलाते हैं कि आप ब्यूटीफुल हो। यू मस्ट रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। वी आर हियर टू पॉलिश देम, इनहैंस देयर ब्यूटी व्हाट दे हैव ऑलरेडी। हम ब्यूटीफुल नहीं बना सकते, जस्ट उन्हें इन्हांस कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, उन्हें उस चीज़ को ग्रूम अप कर सकते हैं कि आप में जो टैलेंट है आप उसको कैसे निखार के लोगों के बीच ला सकते हो। এই প্ল্যাটফর্মের কনসেপ্টটা যদি আপনি ব্রিফ করে একটু বলেন। हमारा जैसे ये कॉन्सेप्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा बेसिकली कहें तो इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, जस्ट आई एम बीइंग अ सोशल वर्कर। आई वांट टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू अपकमिंग यंगस्टर्स, किड्स, मिसेस, मिस, टीन, सबको वो प्लेटफॉर्म देना जो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिनको पता नहीं होता है कि हम ग्लैमर फील्ड में अपने आप को कैसे लाएं। तो उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हर एज के लोगों के लिए, एक छोटे बच्चे से लेकर टीन के लिए है, मिस के लिए, और शादी के बाद तक जिनको मौका नहीं मिला उनको भी हम मौका देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने आप का एक नाम बना सकते हैं ग्लैमर फील्ड में, वो अपने आप को एज ए मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। আর এখানে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে একটা খুব বড় কনসেপ্ট মানুষের মধ্যে আছে, সেই কনসেপ্টটা যে কতটা ভুল সেটা জানানোর জন্য কি বলবেন? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं ना, इट्स वेरी मच कॉमन और सभी मेरे से पूछते हैं ये बात, और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आप गलत इस फील्ड को समझते हो, मैं बताऊँ कि फील्ड गलत सही आप पे डिपेंड करता, हम पे डिपेंड करता है। कोई अगर गलत नज़रिए से देखेंगे तो कौन सा फील्ड आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोग जो होते हैं हर फील्ड को अच्छा बनाते हैं, बुरे लोग होते हैं कोई भी फील्ड को बुरा कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि शॉर्टकट अपना कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बताओ सिर्फ फैशन शो में ऐसा नहीं होता है। ये शॉर्टकट वाला हर जगह होता है, चाहे आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चले जाओ, बिजनेस प्रोफेशन या किसी भी जगह चले जाओ, शॉर्टकट वाला रास्ते के लिए लोग ना गलत रास्ते में जाते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो सब लोगों ने माइंडसेट कर रखा है, इंडस्ट्री गलत होती है, फैशन शोज गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही गलत आपका अपना डिसीजन है, आपको कौन से रास्ते अपनाने हैं। একদম বিউটিফুল স্টেটমেন্ট ফ্রম ইয়োর সাইড, ফ্রম আ বিউটিফুল রাইট।
Beautiful style. Try to get what you want. Otherwise, one day you will be forced to have what you get. कहते हैं, मुझे वो याद आ रहा है एक शेर, गिरते हैं शशवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शशवार ही मैदान जंग में, और तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। यानी हारता वो है जो मेहनत करता है, जो चलता है वो गिरता है, जो चलना ही नहीं सीखा वो क्या गिरेगा। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। My name is Gagan Soni. तुम्हारा उम्र एज कितना है? 6 years. ओके, तो तुम अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हो? Yes. यस। ओके, क्यों मानते हो अपने आप को ब्यूटीफुल? I am beautiful. यू आर ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई यू आर ब्यूटीफुल। ओके, फैंटास्टिक। तो तुम्हारी मम्मी आज ये कैलेंडर लॉन्च कर रहा है, यहाँ पर इतना जोजो आंटी आया है, इतना सारी कुछ इतना सारा तुम्हारी उम्र के बच्चे भी आए हैं, तुम्हारी दीदी भी आए हैं, तो कैसा लग रहा है? इतना अमेज में सब डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा. ओके, थैंक यू सो मच। এখন হচ্ছে ব্রেক টাইম, সো আমাদের সবাইকে চা বিস্কিট অফার করা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর জোজো ম্যাম এইবারে বেরিয়ে যাবেন, সো সবাই মিলে অনেক ছবি অনেক ভিডিও করে ম্যামকে বিদায় জানাচ্ছে। আর এবারে নেক্সট পারফরমেন্সগুলো স্টার্ট হয়ে গেল, দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। I'm from Kolkata, and right now I'm pursuing my English honors from Vedanta College. And I'm 18 years old. And my field of interests are dancing, drawing, painting, and reading books. Modeling too. Yeah, modern hobbies. थैंक यू। बहुत बड़ी बात है बीइंग अ मुस्लिम फैमिली। मैं जानती हूँ लोगों की थिंकिंग। देखिए, मैं नहीं बोलती हूँ कि फैशन इंडस्ट्री में आओ तो हिजाब हटाओ। आपको ड्रेस हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे पैजेंट में ड्रेस का कोई ऐसा कोड नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही ड्रेस पहन के आप फिनाले राउंड तक जा सकते हो। मैं कभी किसी को कोई फाउंडेशन में नहीं रखती हूँ। और रियली ये हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे ही लोगों के लिए है जो अपना एक कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, हिजाब में रहते हुए चाहते वहाँ तक पहुँचाना नहीं पहुँचा। सीरियसली मैं दिल से कहना चाहती हूँ, आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आप जैसे लोग यहाँ तक पहुँच के वो हिम्मत कर पाए। एंड शी इज़ लकी एंड यू आर रियली सैल्यूट यू कि आप अपनी बच्ची को यहाँ तक लाए उस हिजाब के बाद। मेरी माँ, उनको इतना हिजाब से प्यार है। आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट कि सबको होना चाहिए, हिजाब इज़ नॉट रॉन्ग, इट शुड बी, बट उनको इतना ये ख़राब इंडस्ट्री लगता है कि जब मैं क्राउन होल्डर बनी तो मेरी माँ 1 साल तक बात नहीं करी। अब भी मुझे हिचकिचाहट होती है उनसे बात करने में। उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया इस फील्ड में आकर। वो बिल्कुल भी फेवर नहीं करती है। रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल। इसकी तरफ से थैंक यू कि आप इतना अच्छा सोच रखती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बोलना चाहिए? বাংলা বলি, बहुत सारे लोग बोलते हैं। চাইছি যে আমার মেয়ের ইচ্ছা প্রথম থেকেই খুব ইচ্ছা, তো আমার স্বপ্ন মেয়েকে মানে এই জায়গায় নিয়ে আসার, কিন্তু আমার বাড়ি থেকে সেই সাপোর্ট আমি দিতে চাইনি। আজকে আমি লুকিয়েই এসেছি অন্য কিছু বলে, তো আমি জানি না যদি কিছু সুযোগ হয় তো আমি এইভাবে দেখবো কতটা কি করতে পারি, যদি আপনারা কিছু সুযোগ দেন আমাকে। হ্যাঁ, আমি লুকিয়েই এসেছি, আজকে ওর বাবাকেও মিথ্যে বলে এসেছি। और क्या होता है, पेरेंट्स चाहते भी है ना फेवर करना, तो पड़ोसी रिलेटिव सब खड़े हो जाते हैं। स्पेशली पेरेंट्स को दिखाएंगे कि आपकी बेटी यहाँ जा रही, ये कर रही है, मतलब पेरेंट्स चाहकर भी फेवर नहीं कर पाते। ये हमारी सोसाइटी और हमारे पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं। इट्स रियली सैल्यूट यू जो आप यहाँ तक पहुँचकर हिम्मत की, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ब्लेस यू। এইবারে আসছে আমার বিউটিফুল বোন মিস রচনা খাতুন। Repeat your name. Rachna Khatun. What's your hobby? My hobby is acting,
Your age? 6 months. और आज टैलेंट में क्या करने वाले हैं? আপসেট হয়ে গেলে তো উইথ মিউজিক ডান্সটা খুবই ভালো লাগছিল, বাট মিউজিক দিলে আমার তো কপিরাইট পড়ে যাবে, তাই আমি মিউজিককে মিউট করে দিলাম। চাইলে তোমরা হাই চাকাচাক মিউজিকটা চালিয়ে মনের ডান্সটা দেখো। এই সময় যে আমার কতটা আনন্দ আর গর্ব হচ্ছিল সেটা একমাত্র আমিই জানি। ভীষণ ভালো লাগছিল, অতগুলো ক্যামেরার সামনে আমার বোন পারফর্ম করছে, এর থেকে বড় কিছু বেশি কিছু আমি চাই না। ওর আনন্দ, ওর ভালো লাগা, ওর সাকসেসই আমার কাছে অনেক বড় পাওনা, মানে আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। Very nice. Thank you. Next one. হয়ে গেছে বোনের পারফরমেন্স। চলো এবারে ফেরা যাক। একে একে এখনও অনেক পারফরমেন্স বাকি আছে, বাট সবটা তোমাদের দেখাতে গেলে বা আমি নিজেও দেখতে গেলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে ভিডিও। আর প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে, আমাদের বোনের পারফর্ম করে খুব ভালো লেগেছে এটাই বোন বললো। আর আমি মিউট করে দিয়েছি জায়গাটাতেও, কারণ প্রচণ্ড মিউজিক চলছিল। এই মিউজিকের জন্য আমাকে অনেক জায়গা মিউট করতে হলো, তার জন্য আমি দুঃখিত। তো যাই হোক, ম্যাম এখন নিজে পারফর্ম করছে, দেখো কি সুন্দর র্যাম্প ওয়াক করছে। কোনো প্রফেশনই কখনো খারাপ হয় না, সবসময় সব প্রফেশনে কিছু মানুষ থাকে যারা খারাপ মেন্টালিটির হয়, তাই প্রফেশনকে অনেকে খারাপ বলে, বাট কোনো প্রফেশন কখনো খারাপ হয় না। কিছু মানুষ তার মধ্যে ভালো, তার মধ্যে খারাপ থাকে। ওয়াও, আমার তো দারুণ লাগছে, জানি না তোমাদের কীরকম লাগছে। She is really beautiful. ম্যামের মেয়ে একসাথে ওয়াক করছেন, আর এগুলো হচ্ছে ম্যামের ফ্রেন্ডস, তাই সবাই মিলে একসাথে একবার ওয়াক করে নিলেন। এবারে বিদায়ের পালা, তাই ম্যামকে ঘিরে সবাই মিলে একটু ফটো তুলে নিচ্ছে। ওই একটা পিম্পলের জন্য আমি মাস্ক খুলিনি, বাট ম্যাম আমাকে জোর করে মাস্ক খোলালেন যে মাস্ক খুলে আমার সাথে ফটো তোলো, তবে তো ফেসটা দেখতে পাবো। হয়ে গেছে অনেক ফটোশ্যুট, অনেক মডেলিং, এবার ফেরা যাক। অনেকক্ষণ কিছু খাইনি, তাই খিদে পেয়ে গেছে, আর আমার কাছে খাওয়া মানে হচ্ছে বিরিয়ানি। চলো খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে এসেছি স্টেশনে, আর আমার ট্রেনও ঢুকে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। চলো ট্রেনে উঠে পড়ি টুক করে। তো গাইজ আমরা উঠে পড়েছি ট্রেনে, চলো এবার বাড়ি ফেরা যাক। আর আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি, আর টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, ভালো লাগছে না। তো চলো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দিও। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে। তাই তো?